اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں جانتا ہوں کہ تم ضعیف ہو، کمزور ہو، تم سے غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، اس لیے ہر غلطی کی معافی، غلطی کو ڈیفینڈ کرنا اور غلطی پر اصرار کرنا یہ ایک اور غلطی ہے۔ دو آدمی بحث کر رہے ہیں کہ یہ تم نے کیا کیا؟ گلاس توڑ دیا۔ ایک نے کہا تقدیر نے توڑا، ہاتھ سے گر گیا اور نظر لگ گئی۔ لوگ یہ بحث کرتے ہیں اور ایک شخص اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے کہ غلطی ہو گئی، معافی دے دو۔ اللہ کو یہ بات سننے کا بہت شوق ہے کہ غلطی ہو گئی، معافی دے دو، ورنہ تو عبادت کرنے والے بے شمار ہیں۔ ایک بادشاہ کے دو بیٹے تھے۔ بادشاہ بڑا نیک تھا۔ جو بڑا بیٹا تھا اس نے کہا میرے حصے کا پیسہ مجھے دے دو، میں تو یہاں رہنا نہیں چاہتا، گھبرا گیا ہوں، دنیا کی سیر کروں گا۔ بادشاہ نے اس کو پیسہ دے دیا اور رخصت کر دیا۔ وہ پیسے لے کر چلا گیا۔ چھوٹے نے کہا میں ابا حضور کے پاس ہی رہوں گا۔ وہ جو پیسہ لے کر جانے والا ہے، کچھ عرصہ کے بعد اس نے وہ پیسہ ضائع کر دیا۔ پردیس میں بڑی تکلیف ہوئی، حتیٰ کہ زمین پر جانوروں کے ساتھ لیٹنا پڑ گیا اور جنگلی بوٹیاں کھاتا رہا۔ ایک دن زمین پر سویا ہوا تھا تو اس نے سوچا کہ میں نے غلطی کی تھی اور باپ کے حضور میں گستاخی کر گیا، لیکن کوئی بات نہیں، شاید باپ معاف ہی کر دے، شاید اس کے دل میں رحم آ جائے۔ اس طرح وہ نیت کر کے واپس چلا۔ باپ کو جب پتا چلا کہ بیٹا شہر آنے والا ہے تو اس نے گھی کے چراغ جلائے اور استقبال کی تیاریاں کی۔ بیٹے کا استقبال ہوا اور بڑا استقبال ہوا۔ کئی بچڑے ذبح کیے اور بڑا انتظام کیا۔ وہ جو چھوٹا بیٹا تھا اس نے کہا با حضور یہ تو پیسے ضائع کر کے آیا ہے اور پھر بھی اتنا بڑا استقبال ہو رہا ہے۔ میں آپ کے ساتھ عبادتیں کرتا رہا، خدمت کرتا رہا، مگر میرے لیے تو آپ نے کبھی مرغی بھی ذبح نہیں کی اور اس کے لیے بڑے بڑے بیل اور بچڑے ذبح کر دیے۔ اس نے کہا بیٹا بات یہ ہے کہ تو گمراہی کا راز نہیں جانتا، تو ایک راستہ جانتا ہے اور وہ نیک راہ ہے۔ جو گمراہی سے واپس آیا ہے وہ مجھے زیادہ پیارا ہے۔ تو وہ آدمی جو اس جگہ سے آیا ہے جہاں سے آنا ممکن نہیں تھا، اس کو اللہ واپسی کی اجازت دیتا ہے۔ اور تم تو اچھے نصیب میں پیدا ہوئے، عبادت کرتے گئے، تمہیں کیا پتا گناہ کیا ہوتا ہے۔ گناہ کی دنیا سے مڑ کے آنے والا اللہ کے ہاں زیادہ قابل عزت ہے، کیونکہ وہ اس جگہ سے مڑ کر آیا جہاں سے مڑنا ممکن نہیں تھا، اس کے لیے زیادہ استقبال ہوا۔ تو گناہ جتنا بھی ہو واپسی کے لیے پرواہ نہ کیا کرو، سیدھا اللہ کے حضور سجدے میں جاؤ تو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ اللہ اتنی محبت کرتا ہے انسان سے کہ وہ 70 ماؤں سے زیادہ شدت کے ساتھ بندے کو وہ محبت دیتا ہے کہ وہ بار بار یہ کہتا ہے کہ تو لوٹ آ، تو واپس لوٹ آ، میرے آگے جب تو سر بسجدہ کرے گا، میرے آگے جب تو جھکے گا تو میں تیرے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ یہ انسان ہی ہے جو اللہ سے بھاگتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ انسان سے جتنی محبت کرتا ہے، اتنی انسان محبت کرنے لگ جائے تو کیسی کایا پلٹ جاتی ہے۔ ہم نے آپ لوگوں کے لیے ویکلی پریڈکشن کا پروسیجر چینج کیا ہے۔ اس ویکلی پریڈکشن میں ہم آپ لوگوں کے جو معاملات ہیں 3 سٹیجز میں بتائیں گے۔ فرسٹ سٹیج آف دی ویک کی جو سچویشن ہوگی وہ بھی بتائی جائے گی، سیکنڈ سٹیج آف دی ویک کی سچویشن ہے وہ بتائی جائے گی، اور تھرڈ سٹیج آف دی ویک کی جو سچویشن ہے وہ بھی بتائی جائے گی۔ اور خاص کر ہم آپ لوگوں کے دیے ہوئے کمنٹ سے جو آپ لوگ اپنا نام، والدہ کا نام، ڈیٹ آف برتھ اور مسئلہ بیان کر کے ہمیں چیز بتائیں گے، اس کا ہم ویکلی ایک خاص ویڈیو بنا کے آپ لوگوں کو جواب دیں گے، جس میں ہم آپ لوگوں کو پڑھنے کے لیے بتائیں گے کہ آپ کے معاملات میں جو رکاوٹیں ہیں، جو چیزیں رکی ہوئی ہیں یا جو چیزیں خراب ہیں ان کو کیسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے۔ خاص کر آپ کے سٹارز کی اگر پوزیشن خراب ہے، یا آپ کے معاملات میں کوئی جن جادو کا اثر ہے، یا روحانی معاملات کی خرابی ہے، یا گھریلو معاملات میں ناچاکی ہے، یا لو افیئر سے پرابلم ہے، یا آپ کی طبیعت کے اوپر بوجھل پن ہے، نظر بد ہے، یا چیزیں آپ کی جو
ठीक नहीं हो रही या रिश्तों में जो रुकावटें हैं उनको कैसे दूर किया जाए। जब आप लोग हमें अपना नाम, वालदा का नाम, डेट ऑफ बर्थ और मसला बताएंगे, उसके लिए हम हर वीक में एक स्पेशल वीडियो बनाकर आपके सवालों का जवाब और आपको ख़ास पढ़ाई और रेमेडीज़ और सदका और अमल बताएंगे। वो जो चीज़ें हैं अगर आप लोग करेंगे तो उसके साथ ख़ास इजाज़त और बुज़ुर्गों की मदद के साथ आपकी हम हेल्प करेंगे और आपके मामलात इंशाअल्लाह अल्लाह चाहेंगे तो बेहतरी की तरफ चले जाएंगे। इसलिए आपने हमें कमेंट्स में अपना नाम, वालदा का नाम, डेट ऑफ बर्थ और अपना मसला बताना नहीं भूलना, क्योंकि हर वीक हम लोग आपकी बताई हुई जो बातें हैं या कमेंट्स हैं या आपका जो मसला है उसको डिस्कस करके आपको उसका बेहतरीन कुरान सुन्नत की रोशनी में हल देंगे और अल्लाह ताला आपके मामलात में मदद भी करेंगे और आपके मामलात ख़ास बेहतरी के साथ आगे भी जाएंगे। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर। अगर हम एरीज की बात करें तो एरीज वाले वैसे तो ज़रा जल्दबाज होते हैं और तबीयत में उनके थोड़ी सी तलखी होती है, मगर आपकी जो तबीयत अगर कामों में लग जाए तो बहुत कुछ कर गुजरने की ठान लेते हैं। और अगर हम आपकी इस वीक की पहली स्टेज की बात करें कि वीकली हॉरोस्कोप में फर्स्ट स्टेज ऑफ द वीक में आपके मामलात में कुछ डर, खौफ, कुछ परेशानी और चीज़ों के होने या ना होने के मतलब आपको ख्यालात का अंबार आएगा। आप डर खौफ के मराहल में से गुजरोगे कि आपको अपनी ज़िंदगी के मामलात में, चाहे वो लव रीडिंग हो, चाहे वो जनरल रीडिंग हो, चाहे वो आपके मुआशी मामलात हो या रूहानी मामलात हो, कि आपको ये मामलात करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। तो पहले स्टेज में आप कोई ऐसा फ़ैसला ना कीजिएगा जो कि आपकी ज़िंदगी के ऊपर असर अंदाज हो। और सेकंड स्टेज ऑफ द वीक में आपको कुदरत की तरफ से, अल्लाह की तरफ से एक ख़ास पैगाम आ सकता है और ये जो पैगाम है ये खुशियों वाला पैगाम, खैर व बरकत वाला पैगाम और आपके मामलात के ऊपर अल्लाह की ख़ास करम नवाजी वाला पैगाम होगा सेकंड स्टेज ऑफ द वीक में। और ये जो सेकंड स्टेज ऑफ वीक में आपके मामलात हैं उनमें ख़ास पेश रफ्त हो सकती है, उसको आपने मशवरे के साथ ज़रूर करना है। और थर्ड स्टेज ऑफ द वीक में एरीज वालों के पास जो पैगाम आएगा वो पैगाम आपकी प्रमोशन भी हो सकती है। आपके अगर पैसे रुके हुए हैं और माली मामलात हैं उनमें मदद हो सकती है, और जिनकी मंगनियां और रिश्तों में प्रॉब्लम है वो भी हो सकती हैं। मगर फर्स्ट स्टेज ऑफ द वीक में बादसरात मौजूद हैं, चीज़ें रुकी हुई हैं, उनके सलूशन के लिए आपको तदब्बर और अक्लो फहम के साथ फैसला करना होगा कि आपने इस वीक में तीनों स्टेजेस को किस तरीके से हैंडल करना है कि आपका ये वीक खुशियों के साथ और खैर व बरकत के साथ आगे बढ़े। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। टॉरस की बात करें और बुर्ज सौर वालों की बात करें और प्यार और मोहब्बत की देवी वालों की बात करें, आप लोगों ने हमेशा लोगों के साथ जिस तरह मोहब्बत और प्यार का इजहार किया है, मगर इस वीक में आपकी जो प्रिडिक्शंस आएंगी, 3 स्टेजेस की जो प्रिडिक्शन है, फर्स्ट स्टेज ऑफ द वीक में आप लोग मुकम्मल मुस्तहकम इरादे के साथ अपने वीक का आगाज़ करेंगे। और ये जो वीक का आगाज़ है ये आपको नए विजडम, नए हौसले और नई जुर्रत का इजहार करेगा और आप अपने मामलात को बड़ी अच्छी पेश रफ्त के साथ आगे लेके जाएंगे। और सेकंड स्टेज ऑफ द वीक में आप अगर एजुकेशन के शोबा से मुंसलिक हैं, अगर आप शादी के मामलात में पेश रफ्त चाहते हैं या आप ज़िंदगी के किसी भी शोबा में पेश रफ्त चाहते हैं या माशी मामलात हैं, आपको अल्लाह ताला की तरफ से ख़ास मदद और इनाम मिलने वाला है और चीज़ें आपकी अल्हम्दुलिल्लाह
काफ़ी हद तक ठीक हो जाएंगी, कोई परेशानी या रुकावट नज़र नहीं आती। मगर थर्ड स्टेज ऑफ द वीक में आपको ज़िंदगी के मामलात में, थर्ड स्टेज में आपको ज़िंदगी के मामलात और ख़ासकर आपकी घरेलू लाइफ और आपके पार्टनर की लाइफ और आपके जो दोस्त अहबाब हैं उनमें नई जिद्दत और नए जज्बे के साथ नई शुरुआत का आगाज़ होगा। बेसिकली देखा जाए तो टॉरस वालों का ये वीक कुछ कर गुजरने वाला, कुछ नई चीज़ें पैदा करने वाला और कुछ नई खुशखबरियां लाने वाला वीक है। इस वीक में आप कई कामों की शुरुआत कर सकते हैं, काम का आगाज़ कर सकते हैं। रुकावटें, मुश्किलें और परेशानियां इस वीक में उस अंदाज में आपके ऊपर नहीं असरअंदाज करती हुई नज़र आती कि जिस तरह पहले आपके मामलात डिस्टर्ब होते थे। इसलिए इस वीक में खासकर थर्ड जो स्टेज है उसमें कोई काम का आगाज़ कर लें, कोई शादी के मामलात, कोई रिश्ते के मामलात, कुछ भी कर लें, अल्लाह ताला आपके मामलात में ज़रूर मामून साबित होंगे। बुर्ज जौज़ा की बात करें तो आप लोगों का अतारद स्टार और ये अक्लो फहम और दूर अंदेशी का जो स्टार है इस वीक में आपके लिए क्या चीज़ें ला रहा है। और 3 स्टेजेस ऑफ द वीक में फर्स्ट स्टेज में आपके मामलात ख़ासकर घरेलू ज़िंदगी से मुतल्लिका, आपके वालिदैन से मुतल्लिका, आपके रिश्तेदारों से मुतल्लिका जो मामलात हैं उनको आपने ज़रूर देखना है कि कहीं मुश्किल या परेशानी नहीं आ रही। अपने घरेलू मामलात को तवज्जो के साथ देखना है आपने। और सेकंड स्टेज ऑफ द वीक में आपके जिस्म पर, आपके मामलात पर बोझ और घरेलू जिम्मेदारियों का जो अंबार होगा ये आप की तबीयत को डिस्टर्ब कर सकता है, आपके मामलात को ख़राब कर सकता है और आपकी तबीयत में नकाहत आ सकती है या रूहानी असर आन मौजूद हो सकता है। और थर्ड वीक ऑफ द स्टेज में आप खासकर जो अपने मामलात में परेशान होंगे या आप अपने मामलात में मायूस होंगे, अल्लाह की ख़ास मदद के साथ आप निकल पाएंगे। और ये जो मायूसी है, ये जो परेशानी है, ये ख़ास अल्लाह की रहमत के साथ आपके मामलात में मावन साबित होगी। और कोशिश कीजिएगा रूहानी हेल्प के साथ आप जो सेकंड और थर्ड स्टेज ऑफ द वीक है उसमें आप रूहानी हेल्प ज़रूर अल्लाह से लीजिएगा ताकि आपके मामलात में रुकावटें ना आए, क्योंकि रुकावटें आने का अंदेशा मौजूद है। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। कैंसर की बात करें और बुर्ज सरतान वालों की बात करें कि इस वीक में आप लोगों की जो 3 स्टेजेस हैं, 3 स्टेजेस की एनर्जी स्टार से और टैरो कार्ड से क्या ज़ाहिर करती हैं कि फर्स्ट स्टेज ऑफ द वीक में आप लोग इंजॉय कर सकते हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन फैमिली में एंजॉय कर सकते हैं, घरेलू माहौल खुशियों वाला हो सकता है, मामलात का आगाज़ बड़ी बेहतरी के साथ होने वाला है और कई चीज़ें आपके हक़ में बेहतर होती हुई नज़र आ रही हैं। ख़ासकर अल्लाह की मदद मिलती हुई आपको फर्स्ट स्टेज ऑफ द वीक में नज़र आती है। और सेकंड स्टेज ऑफ द वीक में आपने अपने राज की बात, अपने दिल की बात और जो आपके दिमाग या दिल में चीज़ें चल रही हैं वो आपने बिल्कुल नहीं बतानी किसी को और मामलात को रोक के रखना है, छुपा के रखना है, ताकि आप जो मामलात आगे लेके जा रहे हैं या जो मामलात में आप बेहतरी चाहते हैं उसमें कामयाबी मिल जाए। क्योंकि मैं बताने वाला हूँ थर्ड स्टेज ऑफ द वीक में आपको जिस काम के ऊपर आप कोशिश कर रहे हैं उसमें अचीवमेंट मिलती हुई नज़र आ रही है। वो काम चाहे आपकी एजुकेशन से रिलेटेड हो, आपकी शादी से रिलेटेड हो, आपकी सेहत से रिलेटेड हो, उसमें कुछ ऐसी पेशरफ्त नज़र आ रही हैं कि आपका थर्ड स्टेज ऑफ द वीक आपको बेहतरी की तरफ ले जाएगा। आपके मामलात में आसानियां पैदा हो जाएंगी, चीज़ें आपकी ठीक हो जाएंगी और मामलात में खैर व बरकत के साथ काफ़ी चीज़ें आपके हक में जाती हुई नज़र आती हैं। लियो की बात करें और बुर्ज असद वाले इस वीक में
फर्स्ट स्टेज ऑफ द वीक में आप लोगों के कार्ड्स की एनर्जी या आप लोगों के स्टार्स की एनर्जी इस तरह के मामलात बता रही है कि आपके मामलात में आपके घर वालों का, आपके जो है अज़दवाजी मामलात में, घरेलू मामलात में और शादी के मामलात में औरत का हाथ है वो आपके मामलात में मुआवन साबित हो सकती है। और सेकंड स्टेज ऑफ द वीक में आपकी चीज़ें कुछ ख़राबी की तरफ जा सकती हैं, तबीयत बोझलपन वाली हो सकती है, मामलात में ख़राबी हो सकती है या सेहत के मामलात डाउन हो सकते हैं। इसलिए आपने कोशिश करनी है अपने सेहत के मामलात के ऊपर तवज्जो करनी है और अपने इर्द गिर्द अपने दुश्मनों को नज़रअंदाज नहीं करना कि आपके मुखालफ आपके इर्द गिर्द ही मौजूद हैं और उनको आपने ध्यान से देखना है, ख़ासकर आपके घरेलू मामलात में या जो रिश्ता अज़दवाज में लोग मुंसलिक हैं उनके इर्द गिर्द जो मुखालफिन हैं वो आपके रिश्तों को, आपके मामलात को दरारें डाल के ख़राब करना चाहते हैं, इसलिए उनसे मुहतात रहना है। और थर्ड स्टेज ऑफ द वीक में अल्लाह की दोबारा आपके ऊपर मदद आन मौजूद होगी, आपके मामलात में पेशरफ्त हो सकती है, कोई नई अपॉर्चुनिटी आ सकती है, कारोबारी मामलात में अपॉर्चुनिटी आ सकती है और जो लोग एजुकेशन के शोबा में मुंसलिक हैं उनके पास नई अपॉर्चुनिटी आ सकती है और या कोई लोग रिश्ते अज़दवाज में या जिनके रिश्ते नहीं आए उनको भी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो थ्री स्टेज ऑफ वीक की एनर्जी की बात करें तो पहली स्टेज में अल्लाह की खैर व बरकत, मदद, दूसरी में बद इसरात, नजर बद या जादू का असर, मगर तीसरी में फिर अल्लाह की मदद और आपके कामों में खास पेशरफ्त और आपके मामलात बेहतरी की तरफ जाते हुए नजर आते हैं। इस वीक में आपने मायूस नहीं होना और पॉजिटिव तरीके से अल्लाह की मदद का इंतज़ार करके अपने कदम को आगे बढ़ाना है ताकि अल्लाह का जो ख़ास करम है जिस तरह हमेशा आपके ऊपर होता रहा है मज़ीद हो और आपके रस्तों में आसानियाँ पैदा हो जाए। विर्गो वालों की बात करें कि इस वीक में, आने वाले वीक में आप लोगों की अगर एनर्जी की डिवीजन करें तो 3 पार्टीशन में फर्स्ट स्टेज ऑफ द वीक में आप लोग डबल माइंडेड रहेंगे या आप लोगों के पास 2 ऑप्शंस आएंगी जिनके ऊपर आप गौर करेंगे कि आपको फैसला क्या करना है, आपको कौन सा काम करना है। ये काम आपके अज़दवाजी मामलात से मुतल्लिक़ भी हो सकता है, ये आपके बिजनेस से रिलेटेड भी हो सकता है, ये आपके कैरियर से रिलेटेड भी हो सकता है। फर्स्ट स्टेज ऑफ द वीक में आप रूहानी हेल्प लेने की भरपूर कोशिश करेंगे और सेकंड स्टेज ऑफ द वीक में आप अपने बुजुर्गों से, अपने पेरेंट्स से और अपने वो लोग जिनसे आप रूहानी गाइडलाइन लेते हैं आप उनके पास जाएंगे और उनसे आप रूहानी हेल्प लेंगे कि आपको अपने मामलात कैसे सही करना है या आपको क्या पढ़ना है या आपको ज़िंदगी की इस स्टेज में क्या फ़ैसला करने के लिए कौन से इक़दाम करने हैं कि आपकी ज़िंदगी बेहतरी की तरफ चले जाए। और थर्ड स्टेज ऑफ द वीक में आप अपने मामलात को रूहानी सुकून और खुशी के साथ, अच्छे फ़ैसले के साथ अपनी ज़िंदगी मुतय्यन करते हुए नज़र आएंगे। आपको अल्लाह की ख़ास मदद मिलेगी और ये मदद आपकी अज़दवाजी ज़िंदगी, आपकी तालीमी जो रुझानात है उससे मुतल्लिक़ा और आपके कैरियर से मुतल्लिक़ा जो आपके मामलात हैं उनमें ख़ास अल्लाह की मदद मिलती हुई नज़र आएगी। मगर आप लोग इस वीक में कोई ख़ास फ़ैसला करने वाले हैं और ये फ़ैसला आपकी ज़िंदगी को आगे लेके जाने वाला है। कुछ ख़ास तब्दीलियाँ और ख़ास शुरुआत होने वाली हैं आपके मामलात के लिए, इसलिए आपने ध्यान से अल्लाह के साथ, कुर्ब के साथ और तवज्जो के साथ फ़ैसला करना है। जो भी फ़ैसला करें उसमें अल्लाह को शामिल हाल ज़रूर रखिएगा। बुर्ज मेज़ान लिब्रा वाले इस वीक में फर्स्ट स्टेज ऑफ द वीक में प्लानिंग करेंगे, फैसला करेंगे, चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करेंगे। जो लोग बाहर जाना चाहते हैं बाहर के सफ़र का आगाज़ कर सकते हैं, जो लोग नए काम का आगाज़ करना चाहते हैं वो कर सकते हैं और ख़ास प्लानिंग के तहत
फर्स्ट स्टेज ऑफ द वीक में आगे बढ़ेंगे, मगर सेकंड स्टेज ऑफ वीक में आपका दुश्मन मौजूद होगा, वो आपके कामों में रुकावट डालेगा, चीज़ें रोकेगा, रुकावटें मौजूद खड़ी होंगी। इस वक्त जब आप सेकंड स्टेज ऑफ द वीक में होंगे, आपको अक्लो फहम के साथ फैसला करना है और ख़ास अज़कार के ज़रिए या पढ़ाई के ज़रिए, जो आप औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम की सूरत में या आयतुल कुर्सी की सूरत में पढ़ के उन बद असरात से बच के जब 3 स्टेज ऑफ द वीक में जाएंगे, तो 3 स्टेज ऑफ द वीक में आपको खबर मिल जाएगी कि कौन सी रुकावट है या कौन सा बंदा है जिसने आपकी खुशियों में, आपकी घरेलू ज़िंदगी में, आपके लव अफेयर्स में या आपकी एजुकेशन में रुकावटें डाली हैं, जिसकी वजह से आप डबल माइंडेड थे। आपकी चीज़ें जो आपके काबू में नहीं थी, रुकी हुई थी, उनकी प्लानिंग चलेगी और ये प्लानिंग और ये चीज़ें आप रूहानी मदद के ज़रिए ठीक करने की कोशिश करेंगे और अल्लाह ताला आपकी मदद भी करेंगे। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। स्कॉर्पियो की बात करें और बुर्ज अकरब वालों की 3 स्टेज ऑफ द एनर्जी में, फर्स्ट स्टेज में आप लोगों के पास एक ख़ास काम आने वाला है, जिनकी जॉब्स नहीं लगी हुई, जिनकी सीवीज़ दी हुई हैं या जो अपने मामलात में पेशरफ्त चाहते हैं, रूहानी या मुआशी या रिश्ता से मुतल्लक या रिश्ता अज़दवाज से मुतल्लक ख़ास ऑप्शन आती हुई नज़र आती है और ये ऑप्शन आपके मामलात को आगे भी बढ़ा देगी। और सेकंड स्टेज ऑफ द वीक में आप मजबूत इरादे के साथ, नई सोच और नई उमंग के साथ अपने मामलात के ऊपर काम करेंगे और ये जो काम करना है ये आपके मामलात को या आपकी सोच को मज़ीद मुस्तहकम कर देगा। और आप जो भी चीज़ें सोच रहे हैं, चाहे वो आप फॉरेन कंट्रीज़ में जाने के बारे में सोच रहे हैं, आउट ऑफ सिटी जाने के बारे में सोच रहे हैं, या आप अपने कैरियर के हवाले से सोच रहे हैं, आपको ख़ास मदद मिलती हुई नज़र आती है अल्लाह ताला की तरफ से सेकंड स्टेज ऑफ द वीक में। मगर थर्ड स्टेज ऑफ द वीक में आपकी तबीयत में गुस्सा, जज्बातियत और जो परेशानी का अंसर जो है वो लागू रहेगा। इसलिए आपने थर्ड स्टेज ऑफ द वीक में ज़रूर अपने मामलात को देखना है, ख़ासकर घरेलू ज़िंदगी में या अपने इर्द गिर्द के माहौल में नज़र रखनी है कि कौन बंदा है जो आपके मामलात को डिस्टर्ब कर रहा है या परेशान कर रहा है, ताकि मामलात में ख़ास पेशरफ्त हो और मामलात बेहतरी की तरफ चले जाएं और अल्लाह ताला की मदद भी आन मौजूद हो। तो 3 स्टेज ऑफ द वीक में फर्स्ट स्टेज में ऑप्शन मौजूद है, सेकंड स्टेज में आप फैसला कर पाएंगे कि कौन सा काम करना है, मगर थर्ड स्टेज ऑफ द वीक में आपने गुस्सा नहीं आना, जज्बातियत के साथ नहीं, बल्कि अक्ल व फहम के साथ फैसला करना है और अक्ल व फहम के साथ किया हुआ फैसला आपके मामलात में पेशरफ्त लेके आएगा और आपके तमाम शोबों में, ये शोबे आपके एजुकेशन से रिलेटेड हों, आपकी ज़िंदगी के जो दायराकार हैं उससे रिलेटेड हों, या आपके दोस्त अहबाब जो आपके साथ रिलेटेड हों, उन तमाम मामलात में आपको पेशरफ्त देगा और मामलात में काफ़ी बेहतरी नज़र आएगी। सेजिटेरियस की बात करें तो इस वीक में, फर्स्ट स्टेज ऑफ द वीक में, आप वीक का आगाज़ खैर बरकत के साथ, खुशियों के साथ और नई सोच और नई उमंग के साथ करेंगे और इसमें ख़ास अल्लाह की मदद भी मौजूद होगी। अगर आप कोई फ़ैसला करना चाहते हैं, कोई काम करना चाहते हैं, किसी नए काम का आगाज़ करना चाहते हैं, तो आपके मामलात इंतहाई बेहतरी के साथ आगे बढ़ने वाले हैं। अगर आप फर्स्ट स्टेज ऑफ वीक में चीज़ें ठीक करना चाहते हैं, चीज़ें आप आगे लेके जाना चाहते हैं, तो चीज़ें आपके हक़ में जाती हुई नज़र आएंगी। मगर सेकंड स्टेज ऑफ द वीक में आपको पैसे की ज़रूरत हो सकती है, आपको किसी सहारे की ज़रूरत हो सकती है, आपको किसी मुशावरत के साथ किसी ऐसे दोस्त या किसी ऐसे अहबाब की ज़रूरत हो सकती है जो आपके कामों में मावन साबित हो, ताकि आपके रिज़्क़ के मसाइल, मुआशी मसाइल या घरेलू मामलात में जो परेशानियां या रुकावटें हैं वो दूर हों। आपको इस वीक में ख़ास अल्लाह ताला की तरफ से रूहानी हेल्प या आपकी रूहानियत का बढ़ जाना, या जिनके रिश्ते रुके हुए हैं उनके रिश्तों की रुकावटों का दूर हो जाना, या जिनके मामलात में नाकामियाँ लिखी हुई थी वो नाकामियों
کا ٹھیک ہونا خاص اللہ کے کرم کے ساتھ اور خاص کچھ ورد اور وظائف جو آپ کریں گے یا آپ دعا کر رہے ہوں گے، آپ کے رزق کے مسائل کا ٹھیک ہونا کافی پیش رفت کے ساتھ آپ کو آگے لے کے جائے گا اور چیزیں ٹھیک ہوتی نظر آئیں گی۔ مگر آپ لوگوں نے غصہ میں نہیں رہنا، عقل و فہم کے ساتھ اور وزڈم اور اپنی ذہنی صلاحیتوں کا استعمال کر کے اس ویک کو گزارنا ہے، تاکہ یہ ویک آپ کے لیے نئی خوشیاں اور نئی جدتیں لا کر آپ کے معاملات میں بہتری پیدا کر دے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر۔ کیپریکون والوں کی بات کریں تو کیپریکون والوں کے لیے اس ویک میں جو خاص چیزیں ہیں ان کو آپ نے ضرور سمجھنا ہے۔ بیسیکلی کیپریکون والوں کے لیے اس ویک میں کسی روحانی دشمن کا یا کوئی ایسی اللہ کی طرف سے رکاوٹوں کا آنا وہ آپ کے معاملات کو ڈسٹرب کر سکتا ہے۔ اس لیے کیپریکون والوں کے معاملات جو فرسٹ سٹیج آف دی ویک میں آپ لوگ اپنے بزرگوں سے رابطہ کریں، اپنے بڑوں سے رابطہ کریں، بلکہ کریں گے کہ جن کی وجہ سے آپ کے معاملات بہتری کی طرف جائیں۔ اگر آپ فرسٹ سٹیج آف دی ویک میں رابطہ نہیں کرتے تو سیکنڈ سٹیج آف دی ویک میں جو آپ کے دل کے اندر خفیہ باتیں چل رہی ہیں یا روحانی باتیں چل رہی ہیں، چاہے رشتہ ازدواج سے متعلق ہوں، چاہے لو افیئر سے متعلق ہوں، چاہے اپنی جاب سے ریلیٹڈ ہوں یا کوئی بھی شعبہ لے لیں، ان سے ریلیٹڈ ہوں، وہ چیزیں آپ کی رکاوٹیں پیدا کر سکتی ہیں، کیونکہ تھرڈ سٹیج آف دی ویک میں آپ کے اوپر بد اثرات اور چیزیں رکی ہوئیں، کوئی خاص عورت یا کوئی خاص بندہ آپ لوگوں کے اوپر ایسا نظر آتا ہے جو آپ کے معاملات کو ڈسٹرب کرنے کے لیے پڑھائیاں یا وظائف کر رہا ہے، اور یہ پڑھائیاں یا وظائف جو ہیں وہ جلالی ہو سکتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کی زندگی ڈسٹرب ہو سکتی ہے۔ اس لیے آپ نے اس ویک کو مختلف اذکار کے ذریعے اور صدقات کے ذریعے ضرور سلوشن کے ساتھ حل کرنا ہے، تاکہ معاملات بہتری کی طرف رہیں اور آپ کے کنٹرول میں رہیں۔ اس لیے کوشش کرنی ہے اس ویک میں کوئی ایگریمنٹ نہ کریں، کوئی شادی کے معاملات ہیں ان کو نہ آگے لے کے جائیں، کوئی فیصلہ ایسا نہ کریں کہ جس کی وجہ سے وہ کیا ہوا فیصلہ آپ کی آنے والی زندگی میں ڈسٹربنس نہ پیدا کر دے، چیزیں روک نہ دے اور چیزیں خراب نہ کر دے۔ اس لیے آپ نے اس ویک کو ٹھہراؤ کے ساتھ اور اپنے روحانی علاج کے ساتھ اس کو دیکھنا ہے، تاکہ معاملات آپ کے کنٹرول میں رہیں۔ کیریئرز کی بات کریں، برج دلوں کی بات کریں تو اس ویک میں جو آپ گزاریں گے فرسٹ سٹیج آف دی ویک میں، آپ آغاز جو ہے اپنے کاموں کا بڑے جذباتی طور پہ، بڑے ایموشنل طریقے سے اور بڑے اچھے طریقے سے کریں گے، اور اس میں خاص اللہ کی مدد بھی ملتی ہوئی نظر آتی ہے، اور آپ کے کئی کام آپ کو ٹھیک ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اور فرسٹ سٹیج آف دی ویک میں آپ جو فیصلہ کریں گے اس میں آپشن موجود ہے کہ آپ کو کامیابی مل جائے، مگر سیکنڈ سٹیج آف دی ویک میں آپ جن معاملات کو آگے لے کے جانا چاہتے ہیں ان میں سے کچھ تو آپ کر پائیں گے اور کچھ آپ نہیں کر پائیں گے۔ جو آپ نہیں کر پائیں گے، جس وزڈم کے ساتھ چل رہے ہوں گے، اس کی وجہ سے آپ کی طبیعت میں مایوسی، بے چینی، اور آپ کو لگے گا کہ چیزیں جیسے پھر پہلے کی طرح رک گئی ہیں، چاہے وہ آپ کے ازدواجی معاملات ہوں، چاہے آپ کی ایجوکیشن ہو، چاہے آپ کے معاشی معاملات ہوں، تمام معاملات میں آپ کو مایوسی کا عنصر ملتا ہوا نظر آئے گا۔ مگر تھرڈ سٹیج آف دی ویک میں جو لوگ سفر کرنا چاہتے ہیں ان کے سفر کا آغاز ہو سکتا ہے، خاص کر بیرون ملک سفر کا، یا آؤٹ آف سٹی یا آؤٹ آف کنٹری کے ساتھ ساتھ آپ اپنے ارادوں کی تکمیل کے لیے کئی لوگوں کے ساتھ روابط کر سکتے ہیں، اور یہ روابط جو بڑھیں گے یہ آپ اس نیت سے کریں گے کہ آپ کی گھریلو زندگی یا آپ کی ازدواجی زندگی جو مشکلوں کا اس وقت شکار ہے اس سے آپ نکل پائیں، اور خاص کر آپ اپنے معاشی معاملات کو بہتر کرنے کے لیے، اپنے دفتری معاملات کو بہتر کرنے کے لیے، جو رزق کے مسائل ٹھیک کرنے کے لیے کوشش کریں گے، اس میں بھی آپ کو خاص پیش رفت ملتی ہوئی نظر آئے گی۔ مگر بات وہی کہ عقل و فہم کے ساتھ فیصلہ کرنا ہے اور اللہ کی روحانی مدد کے ساتھ اپنے معاملات کو آگے لے کے جانا ہے۔
स्पाइसेस की बात करें, बुर्ज हौत की बात करें कि इस वीक में आप लोगों के मामलात क्या रहेंगे। अगर आपके वीक को 3 स्टेजेस पे तकसीम किया जाए तो फर्स्ट स्टेज ऑफ द वीक में आपके मामलात में जज्बातियत, गुस्सा और लड़ने की तरफ आप दौड़ेंगे। तो इसलिए फर्स्ट स्टेज ऑफ द वीक में आपने अपनी तबीयत में ठहराव लेके आना है। ये ठहराव चाहे आपकी अज़दवाजी ज़िंदगी हो, चाहे आपका लव अफेयर्स हो, चाहे आपकी एजुकेशन हो, चाहे आपके घर के मामलात हों, तमाम शोबों में आपने ठहराव लेना है। और ये जो ठहराव है, इस ठहराव में आपने कोई ऐसा फैसला नहीं करना जो कि आपकी ज़िंदगी के ऊपर असर अंदाज हो। और सेकंड स्टेज ऑफ द वीक में आपको रूहानी मदद और बिजनेस से रिलेटेड, कामों से रिलेटेड या पैसे से रिलेटेड कोई ख़ास मदद मिल सकती है या ख़ास अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, जिसके ऊपर अगर आप काम करते हैं सेकंड स्टेज ऑफ द वीक में तो आपके मामला में काफ़ी ज़्यादा पेशरफ्त हो सकती है। थर्ड स्टेज ऑफ द वीक में आपको अपने मामलात को आगे लेके जाने के लिए, मामलात में पेशरफ्त के लिए पैसे की कमी का सामना हो सकता है। इसलिए आपने कोशिश करनी है कि इन्वेस्टमेंट और जिन लोगों से आपसे के साथ ताल्लुकात हैं या रवाबत हैं उनसे अपनी हेल्प लें, रूहानी हेल्प ले लें, माशी हेल्प ले लें या जो भी मामलात हैं। और कोशिश करें इस वीक में अक्ल फ़हम के साथ अपने फ़ैसले करें। सेकंड जो वीक है, सेकंड स्टेज जो है, उसमें आप बेहतर फ़ैसला कर सकते हैं, मगर फर्स्ट और थर्ड में आप कोई ऐसा फ़ैसला ना करें जिसका असर आपकी पूरी ज़िंदगी पर हो। अल्लाह ताला आपका, आपके घर वालों का हामी नासिर हो।